Good morning to all. Today we will start chapter number 2, banking. In this chapter, first we will see that how many types of the accounts are there. Generally, 4 types of the accounts are there. First is saving account, second one is current account, third one is FD, and fourth one is RD. In our syllabus, only this part is there. Only RD account is there. Then we will discuss only this part. So first we will discuss that what is a RD account. So in an RD account, if any man deposit fixed deposit in every month, then this type of the account is said to be RD account. For example, if any man can deposit 100 rupee in a first month, 100 rupee in a second month, 100 rupee in a third month, then this type of account is said to be RD account. Then if any person can deposit in first month 100 rupees, so in second month total amount deposited that is equal to the 200. In third month total amount to be 300 ... up to n months. ठीक है, तो अगर कोई भी पर्सन 100 रुपीज देगा फर्स्ट मंथ में, सेकंड मंथ में टोटल कितना हो जाएगा वो 200, थर्ड मंथ में कितना होगा वो 300. करेक्ट. इफ वी टेक इन प्लेस ऑफ 100 p मान लिया अपन ने कि प्रिंसिपल, लेट द प्रिंसिपल बी p. तो पहले मंथ में मान लीजिए उसने p डिपॉजिट किया, सेकेंड मंथ में कितना होगा 2p, थर्ड मंथ में कितना होगा 3p, अप टू लास्ट मंथ में कितना होगा वो np. करेक्ट. देन तो बैंक क्या करेगा इस केस में, बैंक क्या करेगा हर मंथ का अलग अलग इंटरेस्ट देगा, क्योंकि हर महीने में क्या है अलग अलग प्रिंसिपल है. पहले वाले में p, सेकंड वाले में 2p, थर्ड वाले में 3p. तो बैंक भी क्या करेगा हर मंथ पे अलग अलग उसको इंटरेस्ट देगा. गेटिंग माई पॉइंट. तो इंटरेस्ट का जो बेस फॉर्मूला है, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100. दिस इज द बेस फॉर्मूला ऑफ द इंटरेस्ट. कोई भी इंटरेस्ट हो, बेस फॉर्मूला क्या है उसका, SI इक्वल टू PRT अपॉन 100. In this formula, time is always taken as years. Means generally we will take time as 1/12 for the 1 month. एक मंथ के लिए अपन टाइम क्या लेंगे यहाँ पे 1/12. ठीक है. तो अपन सारे मंथ का टाइम निकालते हैं, अलग अलग सारे मंथ का अपन इंटरेस्ट निकालेंगे. Therefore total interest I इक्वल टू, लेट द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट मंथ भी I1 मान लिया, सेकेंड मंथ का इंटरेस्ट को अपन ने I2 मान लिया, थर्ड मंथ के इंटरेस्ट को I3 मान लिया, ... लास्ट वन इज इक्वल टू IN. In the first month principal is P. Therefore value of I equal to P into R upon 12 into 100. In second month principal is 2P. Therefore 2P into R upon 12 into 100. And in the last month, directly we'll take last month. Last month means NP into R upon 12 into 100. करेक्ट. यहां से देखें PR अपॉन 1200 कॉमन ले लेंगे अपन, PR अपॉन 1200. Therefore rest part will be 1 plus 2 plus ... last one is n. ठीक है. Therefore PR upon 1200, the value of this one will be n plus 1 upon 2. ठीक है. This is a sum of n natural number. The value of this one will be n plus 1 upon 2. ये आता कैसे है n plus 1 upon 2? ये जो सीरीज है 1 2 3 4 up to n, दिस इज एन AP सीरीज. तो इसमें जो सम का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. Therefore 1 upon 2 into n, 2 into 1 plus n minus 1 into 1. Then the value will be 1 upon 2 and n plus 1.
with the help of we will find the sum of this series. ठीक है. Then now the formula of the interest for the RD account is this: PR n plus 1 upon 1200 into 2, that is equal to the 2400. करेक्ट. तो मेन फॉर्मूला इंटरेस्ट का क्या है, ये है. इसमें P क्या है, P इज अ प्रिंसिपल, द मनी डिपॉजिटेड बाय एनी पर्सन. R मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, N मीन्स time, N means time, and the time we will take always in months. Correct. The difference of these two formulas are, इस फॉर्मूले में क्या करते थे, टाइम हमेशा क्या लेते हैं अपन, ईयर्स में. इस वाले फॉर्मूले में क्या होता है, टाइम हमेशा किस में लेंगे अपन, मंथ में. एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मंथ. मतलब अगर टाइम आपको दिया है टाइम इक्वल टू 2 years, देन वी विल टेक एन इक्वल टू 24. गेटिंग माई पॉइंट. Now one more formula for the maturity value equal to. maturity value क्या होती है, पहले आप ये देखें कि जैसे अभी हमने आपको एग्जांपल बताया था ये. इन दिस एग्जांपल कोई भी मैन ने सबमिट किया, 100 किया, फिर 100 किया, फिर 100 किया, तो बैंक क्या करेगा, मान लीजिए उसकी जो मैच्योरिटी पीरियड है, उसने अपना अकाउंट 2 साल के लिए खोला, तो आफ्टर 2 years बैंक क्या करेगा, उसका उतना पैसा तो वो देगा ही. ठीक है. जैसे टोटल 24 मंथ्स हैं, 100 उसने सबमिट किया, तो टोटल कितना हुआ, 2400. तो 2400 ये किसका पैसा है, ये उसका ही पैसा है, उसका ही, उसकी मनी है. तो बैंक ये तो देगा ही उसको, प्लस उस पे इंटरेस्ट भी देगा. तो इंटरेस्ट क्या करेंगे अपन, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे. करेक्ट. तो मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है, एमबी इक्वल टू, मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल टू एमपी प्लस दिस इंटरेस्ट. Interest means n plus 1 into P into R whole upon 2400. This is the formula for the maturity value. ठीक है. NP क्या है, ये उसका खुद का पैसा है NP, और ये क्या दिया उसने, इंटरेस्ट. Therefore total maturity value is this. समझ में आ गया. तो इस एक्सरसाइज में केवल ये 2 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं. I इक्वल टू दिस एंड वन मोर फॉर्मूला इज दिस, मैच्योरिटी वैल्यू. और अगर आपने यही लर्न कर लिया तो ये क्या है, इसमें एनपी प्लस यही फॉर्मूला था इंटरेस्ट का. करेक्ट. तो मेन इज दिस फॉर्मूला, मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल टू एनपी प्लस एन प्लस 1 PR अपॉन 2400. करेक्ट. इन दिस नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. In this banking exercise, all the question is divided into 4 types. All the question are divided into 4 types. Type 1 means to find the maturity value. Type 2 to find the value of n. Type 3 to find the value of p. Type 4 to find the value of r. Means in all 4 types we have to use only one formula, that formula for maturity value. Now let us take one question. In this question, the maturity value of RD account is 11,364 in 4 years. If the monthly deposit is 200 rupees, find the rate of interest. In this question, they are asking rate of interest. Means this question is of type 4. Type 4 का question है कि इसमें क्या find करना है हमें? We have to find the value of R. In this question, P is given 200, क्योंकि क्या दिया है इसमें, मंथली डिपॉजिट इज 200 रुपीज, मैच्योरिटी वैल्यू इज 11,364 एंड द टाइम इज 4 years. Then we will convert this 4 year into month, that is 4 into 12 equal to 48 months. Now we will use this formula, maturity value equal to NP plus n plus 1 PR upon 2400. Here maturity value it is given, that is equal to 11,364, n equal to 48 month, that is equal to 4 into 12, 48. P equal to 200, value of n equal to 48, n plus 1 means 49, P equal to 200, R as it is, denominator is 2400, 0000 cancel, 2 12 times 24, 12 से ये 48 4 times cancel हुआ, 4 into 49,
that is 196 hour. 12 into 4 48, 2 जा 96, 9600 इसको अपन इस तरफ लाए तो 11,364 minus 9600 equal to 196 hour. Difference of these two equal to 1764 equal to 196 hour, that is R equal to 9%. करेक्ट? तो आंसर अपना कितना होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट R equal to 9%. Then they are asking for rate of interest. So our rate of interest is 9% per annum. करेक्ट? तो सारे के सारे जो भी क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था उन्होंने? R की वैल्यू, किसी क्वेश्चन में मैच्योरिटी वैल्यू पूछेंगे, किसी में N की वैल्यू, किसी क्वेश्चन में P की वैल्यू. Only we have to use this formula in all questions. MB equal to NP plus NN plus 1 PR upon 2400. This formula is very very important. And listen, one more thing. This exercise is very very important exercise regarding your board examinations. Every year one question, it is confirmed, comes from this exercise, comes from this chapter, is of 4 marks. तो ध्यान रखना, ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इजी एक्सरसाइज भी है, बिकॉज ओनली वन फॉर्मूला इज देयर एंड दिस एक्सरसाइज इज फुल्ली फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज. ठीक है, अपन को ये फॉर्मूला बस याद है. क्वेश्चंस की लैंग्वेज से हमें केवल ये पहचानना है विच वन इज अ मैच्योरिटी वैल्यू, विच वन इज अ पी. ठीक है, अपन को क्या फाइंड करना है ये आपको पता चल गया. देन इजीली यू कैन सॉल्व ऑल क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज. तो आपको करना क्या है, पहले पूरी की पूरी एक्सरसाइज के आगे जो सारे एग्जांपल्स दिए हैं, टोटल 7 एग्जांपल्स आर देयर, तो उन एग्जांपल्स को लगाना. आफ्टर दैट 11 एक्सरसाइज क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में दी है. फिर उसके बाद आप सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना. किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि ये पूरा किस पे बेस्ड है? फॉर्मूला बेस्ड. ये फॉर्मूला अप्लाई करना है. आफ्टर दैट सिंपली यू हैव टू पुट ऑल द वैल्यूज, ऑटोमेटिकली यू विल गेट द आंसर. बट करेक्ट सॉल्यूशन शुड बी करेक्ट. ठीक है, इफ द सॉल्यूशन शुड बी करेक्ट. वन मोर थिंग, इन बोर्ड एग्जामिनेशंस होता क्या है कि जैसे हमने सॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व किया, अपन ने ये फॉर्मूला लिख दिया. ठीक है, अगर हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अगर हमने फॉर्मूला लिख दिया, देन देयर इज नो मार्क्स फॉर द फॉर्मूला. ठीक है, जब तक हम उसमें करेक्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट नहीं करते. फॉर द करेक्ट सब्सटीट्यूशन मार्क्स विल बी गिवन. फॉर द करेक्ट सब्सटीट्यूशन मार्क्स विल बी गिवन. ठीक है, तो अपन को फॉर्मूला भी आना चाहिए, उसमें अपन करेक्ट सब्सटीट्यूशन भी करेंगे. तो सब्सटीट्यूशन करने के बाद जो सॉल्यूशन करेंगे उसके मार्क्स होंगे. करेक्ट? तो मार्क्स कैसे स्प्लिटेड होंगे? फॉर्मूला अपन ने लिखा, करेक्ट सब्सटीट्यूशन किया, सॉल्यूशन किया, फॉर द करेक्ट आंसर 4 मार्क्स विल बी गिवन. करेक्ट? गेटिंग माय पॉइंट? आ गया सबको समझ में? देन पॉज द वीडियो, note it down. Thanks all of you.